Now the methods of depreciation. The first method is straight line method or fixed installment method. Under this method, same amount of depreciation is charged every year. Same amount of depreciation is charged every year. So that's why this method is called straight line method or fixed installment method or equal installment method. For example, the life of asset is 2 lakh. Life of asset is 2 lakh. For example, now the next topic is methods of depreciation. The first method is straight line method. Under this method, same amount of depreciation is charged every year. For example, a machine is purchased for rupees 2 lakh and the life of asset is 10 years. Life of asset is 10 years, so every year 20,000 depreciation will be charged. The main thing of this method is it is very simple method. Second is it is very easy to calculate depreciation because the depreciation remains the same every year. Third is it is suitable for small firms, and generally this type of depreciation or this method of depreciation is suitable for the assets like furniture, fixture, etc. Here same amount of depreciation is being charged and it's a very simple method to calculate. Now fixed installment method is over. And how we calculate or how the account is maintained? This is the account. It is the asset account. Assets account. Here we will write the total cost of the asset. By this way to bank account 2 lakh and depreciation every year we charge 20,000. So depreciation will be, I am not writing now the date. Just I am telling to you how the depreciation will be or how the account is to be maintained. Total cost of the asset is 2 lakh and depreciation is 20,000. अगर हम 2 लाख में से 20,000 माइनस कर एक साल के बाद कितना इसका बचेगी वैल्यू मशीनरी की 1,80,000. टोटल हो जाएगा. फिर नेक्स्ट ईयर हम कैसे शुरू करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000. फिर डेप्रिसिएशन 20,000 लग रहा है. फिर आपका बैलेंस कितना बच जाएगा? बैलेंस आपका बच जाएगा 1,60,000 एंड सो ऑन. दिस अकाउंट विल बी मेंटेन. ऐसे ही अकाउंट मेंटेन किया जाएगा. इस टाइप से ये डेप्रिसिएशन सेम वैल्यू सेम कम होती रहेगी. खास बात क्या है इसमें 20,000 डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं हम 10 ईयर तक. इट्स मीन जितनी कॉस्ट ऑफ एसेट है उतना ही हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा. जितनी कॉस्ट ऑफ एसेट है उतना ही हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज. वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन and it is very easy method to calculate. Now the question of the first method, straight line method. Mohan Brothers purchased a machinery of rupees 2 lakh on 1st July 2009 and purchased another machinery on 1st October 2010 for rupees 3 lakh. And first machine was sold on 1st April 2012 for rupees 1,40,000 and on the same day new machinery purchased for rupees 4 lakh. Depreciation is charged 10%. Accounts are closed on 31st December and the machinery account is to be prepared from 2009 to 2012. तो ये मशीन है और अकाउंट्स 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं. खास बात ये ध्यान रखना है. कुछ चीजें जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो कब परचेज कर रहे हैं और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं. जो खास बात ध्यान में आपको रखनी है, ये अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं ध्यान रखिए. अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 30 दिसंबर.
पहली मशीन हमने कब खरीदी? 1 जुलाई को, 2 लाख की। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। जुलाई से लेकर दिसंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2009 में हमने मशीन खरीदी है, 10% डेप्रिसिएशन है। 10% डेप्रिसिएशन 2 लाख पर पूरे साल का होता है 20,000, और हमने खरीदा है जुलाई में, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000। और उसके बाद ये मशीन बेच कब रहे हैं हम? ये मशीन को बेच रहे हैं हम 1 अप्रैल 2012 में। तो पहले साल जो पहली मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 10,000 का। नेक्स्ट ईयर से इस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 20,000 का लगता चला जाएगा जब तक आप मशीनरी बेच रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप आगे पढ़ोगे, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि फर्स्ट मशीन को हमने 1 अप्रैल 2012 को बेचा है। तो अगर मैं सिंपल में आपसे बात करता हूं नॉर्मल वे में, अकाउंट हम बाद में इसका बताएंगे, पहले आप वर्किंग सिंपल समझ लीजिए। वर्किंग, ये मशीन हमने कितने की खरीदी है? मशीन हमने खरीदी है 2 लाख की। मशीन हमने खरीदी है 2 लाख की। 2 लाख की मशीन खरीदी है, और पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगाया, पहले साल का हमने डेप्रिसिएशन इस पर कितना लगाया? 10,000। ये डेप्रिसिएशन है 2009 का। नेक्स्ट ईयर में तो फुल ईयर काम करेगी, तो नेक्स्ट ईयर में फुल ईयर मशीनरी ऑपरेट करेगी, तो डेप्रिसिएशन 2010 का कितना हो जाएगा? 20,000। 2011 में भी हमने पूरे साल इस मशीन को ऑपरेट किया, 2011 का भी डेप्रिसिएशन 20,000 हो जाएगा। और ये मशीन हमने जो सोल्ड की है, लिखा है फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2012। 2012 में 1 अप्रैल को सोल्ड किया ये मशीन हमने। 3 मंथ्स यूज किया, 3 मंथ्स यूज किया है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है हमारा 20,000, तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5,000। ये कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2012 तक। इस टाइप से डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी की कॉस्ट है 2 लाख। 2009 में क्योंकि जुलाई में हमने खरीदी थी इसलिए हमने 6 मंथ यूज किया, 10,000 डेप्रिसिएशन लगा। 2010 में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, 11 में भी फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगा, और 2012 में लगा है हमारा 3 मंथ्स का 5,000। तो इस टाइप से करके मशीन का हमारा वैल्यू आ जाएगी कि हमारी मशीन की इस टाइम पर वैल्यू कितनी है। मशीन की वैल्यू है हमारी 1,45,000। तो मशीन पर हमारी डेप्रिसिएशन लगाकर आई है, कॉस्ट है 1,40,000, और हमने 1,45,000 पर ही सोल्ड कर दिया। इसका मतलब देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस इन केस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। तो बाय दिस वे ये फर्स्ट मशीन का हमने डेप्रिसिएशन निकाला है। ऐसे ही हम सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। सेकंड मशीन कब हमने परचेज करी है? सेकंड मशीन हमने परचेज करी है 1 अक्टूबर 2010 में। तो अगर 1 अक्टूबर 2010 में हमने मशीनरी परचेज की है, तो 2010 में उसको हमने 3 लाख की मशीनरी परचेज की है। अगर हमने 3 लाख की मशीनरी परचेज की है, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन कैसे हम उसको लगाएंगे, डेप्रिसिएशन किस टाइप से लगाएंगे? 3 लाख की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन है। 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000 फुल ईयर का डेप्रिसिएशन होता है। तो 3 मंथ का कितना हो जाएगा? 3 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 7,500। तो मशीन की वैल्यू आपकी थी 3 लाख। फर्स्ट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन लगा 7,500 का 2010 में। 2011 में डेप्रिसिएशन पूरा फुल ईयर हमने यूज करेंगे तो 30,000 का लगेगा। 2012 में भी 30,000 का लगेगा। तो सेकंड मशीन की जो कॉस्ट हम निकालेंगे 2012 में, हमने खरीदी कब है? वो हमने वो मशीन खरीदी है 3 लाख में 2010 में खरीदी है। 2010 में हमने उसका डेप्रिसिएशन लगाया 7,500। फिर हमने उसका डेप्रिसिएशन लगाया 2011 में 30,000। फिर हमने उसका डेप्रिसिएशन लगाया 30,000। तो हमारी जो उसकी कॉस्ट आएगी 2012 में, जो उसकी कॉस्ट आएगी ये आ जाएगी हमारी 2,40,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो 2,32,500। ऐसे थर्ड मशीन है। थर्ड मशीन हमने 1 अप्रैल 2012 में खरीदी है, और अकाउंट में हम 2012 तक ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट मशीन हमने अप्रैल से दिसंबर तक यूज किया, तो 9 मंथ्स की 4 लाख की मशीन है। 4 लाख की मशीन पर 10% फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 40,000 होता है। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 4 लाख
ये आ जाएगा 4 लाख माइनस 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 30,000। तो जो हमारे पास कॉस्ट बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी? 3,70,000। इस टाइप से हम तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। बाय दिस वे वी वुड एबल टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ 3 मशीन। और इसका अभी मैं अकाउंट आपको बता देता हूँ, अकाउंट इसका किस टाइप से हम मेंटेन करेंगे। नाउ टू प्रिपेयर फर्स्ट मशीन, it was purchased on 2009 1st July 1, and the cost was 2 lakh. We will write here to bank account 2 lakh. अकाउंट क्लोज होता है दिसंबर में, तो 6 मंथ तक यूज किया हमने। 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, पूरे साल का 10% है, तो 6 मंथ का या तो 5% कर लो या अमाउंट 6/12 करके निकालो 10,000। तो जो 2009 में दिसंबर 31 को हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो डेप्रिसिएशन लगाया 6 मंथ का लगाया, ब्रैकेट में जाओ तो 6 मंथ लिख लो 10,000। ईयर क्लोज हो गया दिसंबर में, दिसंबर 31 को आपने ईयर क्लोज कर दिया, तो बैलेंस आपका कितना बच गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,90,000 बैलेंस इसका बच गया। यहां पर इन दोनों का टोटल कर देंगे 2 लाख और 2 लाख। इसके बाद अब 2010 शुरू हो गया। 2010 जनवरी 1 मशीन हमारे पास कितने की है जिसको मिलेंगे, आई एम राइटिंग हियर एज 2BD, लेकिन पूरा होगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो मशीनरी है कितने की हमारे पास? फर्स्ट मशीन 1,90,000 की है। और अक्टूबर में हमने एक और मशीन खरीद ली, अक्टूबर 1 को एक और मशीन खरीद ली अक्टूबर 1 को। टू बैंक अकाउंट अक्टूबर 1 को जो मशीन खरीदी है वो खरीदी है हमने 3 लाख की। और हमारा मेथड कौन सा है? ये स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। जो ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख की मशीन है, अब तो पूरे साल यूज करेंगे, तो 2 लाख का 10% डेप्रिसिएशन पहली मशीन पर 20,000 लग जाएगा। और दूसरी मशीन कब खरीद रहे हैं हम? अक्टूबर में खरीद रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स यूज किया, 3 लाख पर 3 मंथ्स का लग जाएगा, तो 3 मंथ्स का कितना आ जाएगा? 7,500। तो यहाँ पर 2010 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा दिसंबर 31 को बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे लग जाएगा पूरा 20,000 और सेकंड मशीन पे लग जाएगा 7,500। तो जो बैलेंस बच जाएगा फर्स्ट मशीन का 1,70,000 का बैलेंस बचेगा, और सेकंड मशीन का जो बैलेंस बचेगा वो 2,92,500 का बैलेंस बचेगा। इसको हम इस साइड लिख देंगे 27,500, और ये आ जाएगा हमारा 4,90,000। ये हो जाएगा हमारा 3 लाख का 4,62,500 हो जाएगा। Second year is over. Now in the third year, 2011, January 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन जो बची है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड मिला के 4,62,500, जिसका मैं ब्रेकअप इधर दिखा रहा हूं। ब्रेकअप है 1,70,000 प्लस 2,92,500, और फिर 2011 में फुल ईयर मशीन हमारे पास ये दोनों मशीनें। तो फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख, उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 20,000, और सेकंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 30,000। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,000 प्लस 30,000, दोनों मशीन में मिला के कितना हो जाएगा? 50,000 का। और मशीन की जो कॉस्ट बच जाएगी सेम डेट को दिसंबर 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट मशीन का बच जाएगा 1,50,000
और इसका बच जाएगा 2,62,500। टोटल मिला के हो जाएगा 4,12,500 एंड हेयर 4,62,500। 3 साल कंप्लीट हो गए क्योंकि हमें अकाउंट बनाना है 2012 तक, इसलिए 2012 का जो अकाउंट बनाएंगे, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा ये। 2012 का अकाउंट बनाने के लिए मैं 2009 और 10 तक सभी को समझ में आ गया, इन दोनों को रब कर देता हूं इधर से। 2012 का अकाउंट बनाने के लिए इलेवन का यहाँ है तो 2012 का मैं ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, इसको यहां से इसको रब कर देते हैं। टू 2012 देख लीजिए अब 2012, तो 2012 में 2012 जनवरी 1 हमारे पास दोनों मशीन बची हुई हैं अभी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको मैं 2 बाय BD करके लिख रहा हूं। फर्स्ट मशीन थी मेरे पास 1,50,000 की, और सेकंड मशीन जो मेरे पास बची है वो है 2,62,500 की। टोटल मिला के इनकी कॉस्ट आ रही है 4,12,500। वर्किंग नोट्स मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 4,12,500। अब ये मशीन हमने 2012 में, 2012 फर्स्ट अप्रैल पहली मशीन भेज दी, फर्स्ट अप्रैल को, अप्रैल 1 को फर्स्ट मशीन भेज दी। तो जो फर्स्ट मशीन बेची है वो 3 मंथ्स के बाद बेची है, फरवरी 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 2 लाख, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 5,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% 20,000, हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000, तो उसका हाफ कर लो 5,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अप्रैल 1 कितना आ गया, 5,000। मशीन की वैल्यू मेरे पास कितनी बची थी, 150, डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 5,000। नाउ द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी रिमेन्स 1,45,000, और हमने बेचा भी 1,45,000 में ही है। तो फॉर्चुनेटली जो इसको बेचा है 145 पर ही सोल्ड कर दिया। 145,000 की किसकी कॉस्ट थी और 145 पर ही सोल्ड कर दिया, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस पर। और उसी डेट को अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को हमने एक और नई मशीन खरीद ली, एक और मशीन परचेस की टू बैंक अकाउंट। जो मशीन परचेस की 4 लाख की है। फर्स्ट मशीन हमारे पास नहीं है अब ये मशीन है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 4 लाख है इस मशीन की कॉस्ट। तो दिसंबर 31 में अब हमारे पास एक तो सेकंड मशीन है और एक थर्ड मशीन। सेकंड मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट थी 3 लाख, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है इसलिए लगेगा उस पर 30,000। और ये मशीन हमने खरीदी थी 4 लाख की। ये कब खरीदी थी, अप्रैल 1 में, तो अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 9 मंथ्स यूज किया। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 40,000, तो 9 मंथ्स का आ जाएगा 30,000। टोटल मिला के दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया 60,000। और अब बैलेंस इनका निकाल लेंगे, दिसंबर 31 को इनका बैलेंस निकाल लेंगे। दो मशीन हमारे पास है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा आपका, फर्स्ट सेकंड मशीन है तो 2,62,000 की उसकी वैल्यू बची हुई है 2,32,500, और थर्ड मशीन की वैल्यू बची हुई है 30,000 डेप्रिसिएशन लगा के 3,70,000। टोटल हो जाएगा 6,02,500 जो दोनों मशीन की वैल्यू बची हुई है। $8,12,500. Now you have to show the carry forward balances 2013 में। क्वेश्चन तो वहीं तक खत्म हो गया, तो इनके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड जनवरी 1 को दिखा देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ये है 6,02,500, जिसमें से सेकंड मशीन की वैल्यू बची हुई है 2,32,500 और थर्ड मशीन की है 3,70,000. By this way we would solve the question, and now the first method is over.